امام بارگاہ بیمینا میں امام خمینی کی برسی کے موقع پر پروگرام کا عمل میں آیا انعقاد۔ میر وائس و دیگر سنی شیعہ علماء نے اسلامی جمہوریہ ایران کے روحانی رہنما کو پیش کیا خراج۔ عید الاضحیٰ کے لیے کیے گئے ہیں وسیع تر انتظامات۔ وقف بورڈ جموں کشمیر کی سربراہ درخشاں اندرابی کی پریس کانفرنس۔ میلہ کھیر بھوانی کے لیے تمام تر انتظامات کو دی گئی ہے خطیت۔ کانگریس کے سینئر لیڈر کرن سنگھ نے مندر کے کیے درشن۔ اور کٹھوعہ کے بنی بسولہ میں سڑک حادثہ، 2 ہلاک 6 زخمی۔ گگنگیر گنڈ میں واٹر سمپ میں گر کر 2 سالہ بچہ ہوا جاں بحق۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جموں ریلوے اسٹیشن پر بم نصب ہونے کی حکام کو اطلاع موصول ہوئی، جو تلاشی کے بعد غلط ثابت ہوئی۔ جموں ریلوے اسٹیشن پر بم کے نصب ہونے کی اطلاع کے بعد ریلوے اسٹیشن پر کچھ وقت کے لیے خوف اور افراتفری کا ماحول دیکھا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک نامعلوم شخص کی جانب سے جموں ریلوے اسٹیشن پر بم کے نصب ہونے کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے بعد ریلوے عملہ نے فوری طور پر چوکسی اختیار کرتے ہوئے بم اسکواڈ ٹیم کو طلب کیا۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں نے ریلوے اسٹیشن کو کچھ وقت کے لیے اپنے گھیرے میں لیا اور بم اسکواڈ ٹیم نے بروقت اور تیز تر کارروائی انجام دیتے ہوئے تلاشی کا کام شروع کیا۔ تاہم کافی دیر تک بم اسکواڈ ٹیموں نے ریلوے پلیٹ فارمز اور ٹرین کی بوگیوں میں تلاشیاں انجام دیں۔ اس دوران کوئی بھی بم یا دھماکوں مواد برآمد نہیں کیا گیا۔ بم کے نصب ہونے سے متعلق غلط اطلاع پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے نامعلوم کالر کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کٹھوعہ کے ہیرانگر میں آج فورسز نے سرچ آپریشن انجام دیا۔ تفصیلات کے مطابق کٹھوعہ ہیرانگر کے سلادی علاقے میں مشتبہ سرگرمی دیکھی گئی، جس کے بعد فورسز نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے سلادی علاقے کا مکمل طور پر محاصرہ کیا اور سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ سرچ آپریشن میں پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کے دستوں نے مشترکہ طور پر کارروائی انجام دیتے ہوئے مشتبہ عسکریت پسندوں کی تلاش شروع کی ہے۔ علاقے میں فورسز نے ڈرونز اور دیگر جدید عصری آلات کا استعمال کرتے ہوئے مشتبہ عسکریت پسندوں کی تلاش شروع کی ہے۔ ملنے والی آخری اطلاع کے مطابق سرچ آپریشن جاری ہے۔ فورسز نے ہیرانگر کے سلادی علاقے کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا ہے۔ علاقے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں واقع نیشنل کانفرنس کے صدر دفتر نوائے صبح کمپلیکس میں مختلف علاقوں سے آنے والے عوامی وفود سے ملاقات کے دوران ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ریاستی درجے کی فوری بحالی سے ہی عوامی حکومت مؤثر طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کو بحال کرے تاکہ منتخبہ عوامی حکومت بغیر کسی رکاوٹ کے عوامی خدمات کو بہتر انداز میں انجام دے سکے۔ فاروق عبداللہ نے عوامی وفود کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے تمام اثر و رسوخ کو بروئے کار لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس عوام کی جماعت ہے اور این سی حکومت کی ترجیحات عوامی مسائل کا حل کرنا، انہیں بہتر حکمرانی اور انتظامیہ فراہم کرنا ہے۔ کانگریس کی جانب سے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر مودی حکومت سے سخت و تلخ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ صدر پردیش کانگریس جموں کشمیر طارق حمید کرا نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح سے پہلگام میں دہشت گردوں نے حملہ کرتے ہوئے عام افراد کو نشانہ بنایا، وہ کیسے اس مقام تک پہنچ پائے، تاحال انہیں پکڑا یا مارا کیوں نہیں گیا۔ جب بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک پالیسی کو ترتیب دیا کہ ملک کے اندرونی معاملات میں کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوگی، تو پھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کس طرح دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی ہے۔
मैं तो अपनी जगह कन्विंस्ड हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक एहसास डेवलप हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो लोगों के वास्ते अब एक लास्ट रिसॉर्ट है। कहने को ये कहें कि वो मजबूरी बन रही है लोगों के वास्ते, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली, वो उनकी टेस्टेड ट्राइड है। तो उस हिसाब से अगर उनको रे ऑफ होप जो है वो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के उन असूलों से, उन पॉलिसीज़ के ऊपर उनका एतबार जो है बढ़ता जा रहा है। बिलखसूस राहुल गांधी जी का जो एक फील गुड फैक्टर, जब से उन्होंने यहाँ पे वो यात्रा में आए और यहाँ पे उस पड़ती हुई बर्फ में लोगों के साथ एड्रेस किया, रिलेट किया, सैकड़ों किलोमीटर्स वो लोगों से मिले, उसके बाद ख़ास तौर से उनका जो एक फील गुड फैक्टर है, एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत बढ़ गया है। और उसके बाद में, यात्रा के बाद में, जो उनका पूरे मुल्क में जो पिछड़े लोग हैं उनके वास्ते आवाज़, ओबीसी के वास्ते तो राहुल गांधी, माइनॉरिटीज़ के वास्ते तो राहुल गांधी, शेड्यूल ट्राइब के वास्ते तो राहुल गांधी, शेड्यूल कास्ट के वास्ते तो राहुल गांधी। तो एक एहसास पूरे मुल्क में ये फैल चुका है कि राहुल गांधी ही एक वाहिद शख्स है जो इस मुल्क की इस बिखरते हुए शिराजे को बचा सकता है। और राहुल गांधी को अगर स्ट्रेंथन करना है तो कांग्रेस को स्ट्रेंथन करना एक ज़रूरी एक अमल बन चुका है। तो जिसका एहसास जम्मू कश्मीर में भी और बिलखसूस कश्मीर में भी हुआ। आप देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे कांग्रेस जो ज्वाइन कर रहे हैं वो रन ऑफ द मिल लोग नहीं है कि मजदूर ले आए तो उनको माला डाल दी, कोई इसी तरह किराए पे ले आए तो माला। दिस इज़ नॉट ए फंक्शन फॉर द गैलरीज और फॉर द कैमरा। आपने देखा इमाम, खतीब, दीनदार लोग, स्कॉलर लोग, वो किस तरीके से समझते हैं कि अगर इस सोसाइटी को बचाना है, जम्मू कश्मीर को, बिलखसूस कश्मीर को इन डिविसिव फोर्सेस से बचाना है, ये यहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म की बेराह रवी है उससे बचाना है, तो कांग्रेस को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ प्योर पोलिटिसाइजेशन और कुछ नहीं है। ये एक आम खाम ज़बान में इसको ड्रामाबाजी कहते हैं। वो आ रहे हैं, बेशक आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है एक इंस्टीट्यूशन होता है, मगर उस इंस्टीट्यूशन का मजाक नहीं उड़वाया जाना चाहिए। वो खुद से इस इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं। और जो उनका जो दोहरा मापदंड है वो खुद से उसमें अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। वो आ तो रहे हैं, रिबन तो काटेंगे, लेकिन किन चीज़ों का वो रिबन काट रहे हैं? पिछले 10 साल से वो रिबन काटते आ रहे हैं सिर्फ उस चीज़ का जिसकी बुनियाद, जिसकी शुरुआत, जिसका फंडिंग यूपीए सरकार में बहैसियत प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाला। तो ठीक है, चाहे ब्रिज का इफ्तिताह करना है, हाईएस्ट ब्रिज है तो उसका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर करेंगे, मगर बुनियाद किसने डाली? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। सड़क का इफ्तिताह करना है, उसका रिबन काटेंगे, बुनियाद किसने डाली? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ट्रेन का इफ्तिताह करना। पीडीपी सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आज एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती ने एलजी से मुलाकात करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम से मुताल्लिक़ा कई एक मुतालबात की यकसोई पर जोर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ात का भी मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करते हुए कहा कई एक अहम मुद्दे उनके सामने रखे। कश्मीरी पंडितों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने, तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने, बकरीद के पेश नज़र जेलों में बंद कैदियों की, जो कश्मीरी कैदी हैं, इनकी रिहाई और साथ ही साथ सालाना अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनेकाद में मुकामी अवाम के ताउन को हासिल करने पर उन्होंने ज़ोर दिया। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ख़ुद को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने वक्फ़ तरमीमी क़ानून से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इस अहम मामले पर बहस के बजाय वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के टूलिप गार्डन में मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू का जो इस्तकबाल करने को उन्होंने ज़्यादा अहम समझा।
जैसा आप लोग सभी जानते हैं, आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने गए थे, मैं और महबूब बेग साहब, और एक दो मुद्दे बहुत ज़रूरी जो हैं उसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी के सिलसिले में किस तरह बाइज्जत तौर से और महफूज तरीके से वो वापस आके अपने घरों में बसे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पीडीपी का हमेशा ये रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, जो मिलिट्री इंटरवेंशन से या मिलिटेंट की बंदूक से जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो हम चाहते हैं कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, एवरलास्टिंग डिग्निफाइड, वो कहते हैं पीस विद डिग्निटी, उसके लिए हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आज हम गवर्नर साहब से गए थे, क्योंकि ये खाली मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की भी जिम्मेवारी है। मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसकी कॉपी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेज दी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी भेज दी एक कॉपी। उसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2020 जो पार्लियामेंट की से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज्यादा हैं, दिल्ली में है और बाकी स्टेट्स में है। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियां कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा ये जो ट्रांसफर का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ पीएम पैकेज के अंडर लोग आए हैं तो उनका जो उनकी ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है, उसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है, सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहां उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, और आपको वही सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन है, बर्थ है, या जहां से वो हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये जरूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई या आपस में इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो नॉमिनेशन रखा है इन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आप नॉमिनेट करेंगे 2 बंदों को, वो जम्मू में होंगे तो उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, असेंबली में वो उधर आएंगे। मगर अगर आप यहाँ सीट रिजर्व करते हैं तो उसमें लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होगा, वो मुसलमान के दरवाजे पे जाएगा, उससे वोट मांगेगा। कल को जब वो एमएलए बनता है तो मुसलमान लोगों को अपने एमएलए के पास आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिससे मुझे लगता है जो रियल इंटीग्रेशन है वो उसी से हो सकती है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है कि आप उनको राशन दे रहे हैं, आप उनको मंथली पैसा दे रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के इनकलाबी व रूहानी रहनुमा इमाम खुमैनी की आज बरसी मनाई गई। इमाम बारगाह बेमीना में आज आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मूसवी असफ़वी की सरबराही में इमाम खुमैनी की 36वीं बरसी के मौके पर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मीरवाइज़ उमर फारूक के बशमोल सुन्नी और शिया उलमा, मशाइख व ज़ाकिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इमाम खुमैनी को खराज पेश किया गया। मीरवाइज़ उमर फारूक ने प्रोग्राम को मुखातब करते हुए कहा कि इमाम खुमैनी 20वीं सदी के एक अजीम व दीनी सियासी शख्सियत रहे हैं, जिनकी खिदमात को बिला मजहब व मिल्लत सभी तस्लीम करते हैं। उन्होंने एक वाज़े मिशन के ज़रिए कौम और दुनिया को मुतासिर किया। उन्होंने मुसलमानों के इत्तेहाद, हुसूल इंसाफ के लिए मज़ाहमत का अजीम दर्स दिया। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज एक बहुत तवील अरसे के बाद 2019 के बाद मुझे पहली बार मौका मिला कि आज हज़रत इमाम आगा सैयद मोहम्मद हादी साहब
सैयद आबिद हुसैनी साहब, मौलवी सज्जाद हुसैन साहब, मौलवी इरफान साहब, सैयद मोहसिन साहब, मौलवी अमजद साहब, मौलवी मोहम्मद यूसुफ साहब और दीगर उलमाए किराम व अकाबरीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, माजो बिनी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक आज तवील अरस पत मौक़े यवान खिराज तहसीन अदा करनु हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाहि अलैह यमन 5-8 वरियन मज़ आव मौक़े ज़ां तिकाज़ नज़रबंदी आसान, बंदिश आसान, तो बह हादी सबस यह वनान कि सुबह ताम तस पता कि खबर त्रावन या न त्रावन कह। बहरहाल शुक्र अल्लाह ताला कुन कि आज यथ मरकजी इमाम बाड़स अंदर तो हजरातन सत आव मौक़े बिल मुशाफा मुलाकात करनुक तो बी अकाबीरन सत आव मौक़े तथ मुलाकात करनुक। बुजुर्गो, आज ये सारी जमा खिराज अकीदत अदा करने खतर, याद करने खतर तस अजीम शख्सियतस युस अजीम शख्सियत पज पट मुसलमानन हुंद बिही खाह, मुसलमानन हुंद रहनुमा तो मुसलमानन हुंद क़ईद ओस। हज़रत अल्लामा खुमैनी रहमहुमुल्लाह कस चीज़ खसूसियत तिमन, क्या चीज़ खास तस शख्सियत अंदर युस सारे पानस कुन अट्रैक्ट करा। यह वन कि सिर्फ सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज एक बहुत तवील अरसे के बाद 2019 के बाद मुझे पहली बार मौका मिला कि आज हज़रत इमाम खुमैनी की बरसी पे हम उनको खिराज अकीदत अदा करें। आपको याद होगा कि हर साल ये तकरीब बड़े पुरजोश अंदाज से मनाई जाती है और हज़रत इमाम खुमैनी की अगर हम बात करें रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो पैगाम था ख़ासकर इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम, तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में वो सबसे अहम और सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू मुस्लिम दुनिया फेस कर रही है वो इत्तिहाद का फ़ुक़दान है। आज अगर मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो जाए और अपने तफरुक़ात, अपने छोटे छोटे इख्तलाफात ख़त्म करे और वहदत की बुनियाद पर, कलिमे की बुनियाद पर और इस्लाम की बुनियाद पर हम सब जमा हो जाएँ, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारी तमाम जो मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, उनका हल निकलेगा। और यही आज उम्मत कश्मीर के लिए, ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा कश्मीर जो है, उनके लिए भी यही पैगाम है कि हमें किसी भी सूरत में इस इत्तिहाद के दामन को पारा पारा नहीं करना है। इस नाइत्तिफ़ाक़ी को हमें अपने अंदर जो है वो उस नासूर को पैदा नहीं करना है। हम एक हैं कलिमे की बुनियाद पर, वहदत की बुनियाद पर, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की पहचान है और इसी पहचान पर हमें कायम और दायम रहना है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सरबराह दरख्शां इंदराबी ने आज श्रीनगर में एक अहम इजलास की सरबराही अंजाम दी, जिसमें इंतज़ामिया के आला अहदेदार और साथ ही साथ उलमा और मशाइख ने इनसे मुलाकात की। बकरीद ईद उल अज़हा के हवाले से इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज श्रीनगर में इस मौके पर उन्होंने मीडिया को भी मुखातब करते हुए कहा कि बकरीद के लिए तमाम तर तैयारियों को ख़तइयत दी गई है। बकरीद के लिए की जाने वाली तैयारियों से मुताल्लिक़ उन्होंने मज़ीद तफ़सीलात बताईं। पहले आप सबों का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जो आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अहदेदारान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। उनके साथ जो बात हुई, क्योंकि ईद चाहे वो ईद उल फितर हो, ईद उल अधा हो और कोई भी बड़ा दिन हो, ये जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर जितनी भी मस्जिद
दरगाहें, ज़ियारतें जो वो कश्मीर में आती हैं, उसमें इंतज़ामात का जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है वो वक्फ बोर्ड के अंडर आता है, क्योंकि जो नमाज और दरगाहों में इंतज़ामात, मस्जिदों में इंतज़ामात और जो बड़ी बड़ी यहाँ पे दरगाहें हैं वहाँ पे जो इंतज़ामात वो सारे वक्फ के ज़ेरे निगरान रहती है। उसके बाद जो ईद का ये बड़ा दिन आने वाला है, ये ईद उल अधा, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल रहता है। डिवकॉम, डीसी, सिक्योरिटी फोर्स, हेल्थ, जल शक्ति, पावर, ट्रांसपोर्ट और बाकी जो महकमे हैं, इनके रोल के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि ये चीज़ें पाए तकमील तक पहुंच पाए। इनका रोल अहमियत का हामी है और हम इकट्ठे होके एडमिनिस्ट्रेशन एंड वक्फ बोर्ड काम करके लोगों को वो खुशी देना चाहते हैं। मेला खीर भवानी के लिए गांधरबल में तमाम तर तैयारियों को खतैयत दी जा रही है। आपको बता दें कि सालाना मेला खीर भवानी से कबल गांधरबल में महकमा सेहत व तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने कहा कि मेले के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डॉक्टर करण सिंह ने आज खीर भवानी मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर करण सिंह ने जो धर्मा मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह ने पीर के रोज़ तुल्ला मोहल्ला में वाक़े खीर भवानी मंदिर पहुंचकर यहां पर दर्शन किए। वज़रे यहां सिक्योरिटी के वसी तर इंतज़ामात किए गए हैं। ज़िला पूंछ में समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाह ने अपने साथियों के हमरा आज तहसील हवेली में तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद शहबाज के इनकी यानी तैनाती पर इनसे मुलाकात करते हुए कई एक मसाइल भी इनके सामने रखे और इनको यानी खुशामदीद किया। तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस में यहाँ पर हमारे जो नए तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहब जो यहाँ तैनात किए गए, कम से कम इनको 1 महीने से ज़्यादा होने लगा, लेकिन नहीं वक्त की हालात की वजह से इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो आज मेरे साथियों का कहना था कि हम नए तहसील ऑफिसर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर आज हमने इनसे मुलाकात की, कुछ अपनी बातें जो है इनको बताई, कुछ उनसे भी बातें हमें सुनी। तो यकीनन इंशाअल्लाह हमें ये पूरा यकीन है कि क्योंकि ये किसी दूसरी डिपार्टमेंट से तो आए नहीं, इसी डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे हैं, इनको पूरी तरीके से जानकारी है। तो यकीनन इंशाअल्लाह हमारे जैसे पहले काम चल। कठुआ के बनी बसोला में हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई जबकि 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब गांधरबल के गगनगीर में एक 2 साला लड़का जो है वाटर सम्प में गिर पड़ने के नतीजे उसकी जान चली गई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू रेलवे स्टेशन पर कुछ वक्त के लिए खौफ व अफरा तफरी का माहौल। बम नस्ब होने की इतला गलत साबित हुई, पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। कठुआ हीरानगर के सलादी इलाके में देखी गई मुश्तबा सरगर्मी, फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। इलाके की कर दी गई मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी।
पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के हमला आवरों को ताहाल मारा या पकड़ा क्यों नहीं गया? सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर का मोदी हुकूमत से सवाल। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली नागुज़ीर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया जोर। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर अवामी वफूद से की मुलाकात। एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बकरीद के मौके पर जेलों में बंद कश्मीरियों को रिहा करने, पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने किया गया मुतालबा। इमाम बारगाह बेमीना में इमाम खुमैनी की बरसी के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद। मीरवाइज व दीगर सुन्नी शिया उलमा ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के रूहानी रहनुमा को पेश किया खराज। ईद उल अजहा के लिए किए गए हैं वसीतर इंतजामात। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरबराह दरख्शां इंदराबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेला खीर भवानी के लिए तमाम तर इंतजामात को दी गई है कतईयत। कांग्रेस के सीनियर लीडर करण सिंह ने मंदिर के किए दर्शन। और कठुआ के बनी वसोली में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। गगनगीर गुंड में वाटर सम्प में गिरकर 2 साला बच्चा हुआ जाँ बहक। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।